हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सबका थिंक बियॉन्ड नॉइज में एक बार फिर स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इन शॉर्ट कॉल GSER report. GSER report. What is the report and which institution responsible for release this report? किस इंस्टीट्यूशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है और इंडिया में कौन सी स्टेट क्या इम्प्रूव किया है, इंडिया में कौन सी स्टेट की क्या पोजीशन है, सब देखेंगे हम। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे तो बिकॉज दिस रिपोर्ट आल्सो एक्टिवेट ए ट्रिगरी पॉइंट मीन्स दैट ए ट्रिगर टू दिस थीम should become your questions in your paper. That is the startup. What is the startup? And Indian startup the very much in news since 2016 when the startup India was started by the honorable Prime Minister Narendra Modi. So first we look the this report. First हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट क्या कहता है. Then we will in the last add a flashback as a background. We will see what is the startup and what is the definition of a startup particular in the India. India में क्या definition of startup का क्या definition है. So let's start. First see in the Indian state Bangalore, Karnataka. Bangalore is rose the 3 spot, 3 स्थान आगे बढ़ के इसका रैंकिंग आया 23वां रैंकिंग आया. So you remember the Bangalore is the 23rd is the annual analysis of the world most favorable ecosystem to build the globally successful startup in the Bangalore, Karnataka, and it was revealed by the Global Startup Ecosystem Report 2016. You know GSER. Sometimes the state PCS and also some examination which is civil service rank examination ask the full form, that is GSER 2021. So you should remember that GSER 2021 is nothing but the Global Startup Ecosystem Report and released as today, of course, by and the Silicon Valley, California rank first. Bangalore 23, only institution in the India, only state city in the Indian, that is Bangalore is the 23rd rank in this GSER report, and Silicon Valley, of course, Microsoft is the one first ranking in the top in the California, which is belong to situated in California. And Delhi, what about Delhi? Delhi is the 36th position. Delhi के बारे में 36th position है in the global startup ecosystem report, and this report released by the startup Genome. So you should remember, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यह जीनोम क्या होता है. ये जीनोम एक संस्था है जो स्टार्टअप की सबसे बड़ी संस्था है, और इसमें जितने भी स्टार्टअप कंपनियां, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां इसमें, और ये एनालाइज करती है, ये रिसर्च करती है दुनिया भर के स्टार्टअप में, और यह लंदन में रिलीज हुआ है. सो रिमेंबर लंदन, नॉट रिलीज इन द इंडिया, रिलीज इन द लंदन. और मुंबई जो है वो पैरेलल टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम, इमर्जिंग में मुंबई का स्थान आया है 2nd ईयर. हर साल ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल ये रिपोर्ट रिलीज होती है, जिसमें आपको याद रखना बेंगलुरु 23, Delhi 36 and Mumbai ranking is a top emerging ecosystem, means top emerging ecosystem, and मुंबई का भी स्थिति अब ठीक हो रहा है. Now the startup genome report analyze the city around the world where the early stage have been best sought to building a global success. और Indian startup, you know, $12.1 billion in the first half of this year. और यह क्या करता है, यह डिमोस्ट्रेटिंग करता है, दिखाता है कि कितनी तेजी से यह इंडिया जो हमारे इंडिया जो है टेक और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है. जनरली स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, लेकिन टेक और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, तकनीकी और इनोवेशन जो प्रमुखता है जो स्टार्टअप जनरली इसी में स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारी वित्तीय सहायता, बहुत सारी टैक्सेशन सहायता दी जाती है. और अगस्त 2021 से 24 यूनिकॉर्न 2021 इंक्लूडिंग द 6 जस्ट डे बिफोर द अप्रैल प्रोड्यूस्ड किया है इन द स्टार्टअप. क्लियर. Next, we see the city Bangalore is surrounded by the Karnataka, also the world 4th technology and innovation cluster.
इंडिया का क्लस्टर सिलिकॉन वैली बोला जाता है किसे? बंगलोर के। बंगलोर इज रिगार्डेड एज द इंडियन सिलिकॉन वैली एज कंपेयर टू द सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया। एंड 200 फॉर ग्लोबल R&D सेंटर है यहाँ पे। अभी भी 400 से ज़्यादा R&D सेंटर है जिसमें रिकॉग्नाइज है द स्टार्टअप बाय द स्टार्टअप इंडिया 2016 also. And along the Mumbai, number of the other Indian hubs made in the top 10 emerging ecosystem list, including Chennai, Pune, Hyderabad. ये सारी चीज़ें तो आपके एग्जामिनेशन में पीटी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि जीएसआरई रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन आया। ऑप्शन दे सकते हैं बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई and Pune, Hyderabad. So your answer should be Bangalore 23. And Bangalore is the 4th largest technology and innovation cluster. Cluster means so many companies started and so many companies established in the one hub, that is make a cluster. Clear? The electronic city भी बोला जाता है, that's why. And the definition of last we promised earlier, that is the what is the definition of a startup? Only the purpose of government scheme. The startup considered to be the entity, a company shall be considered the startup up to period 10 ईयर। जब से वह बना है, जब से वह रजिस्ट्रेशन लिया है, 10 ईयर तक वह स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 10 ईयर्स के बाद में वह स्टार्टअप नहीं होगा जब से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और कंपनियां के बहुत सारी वैरायटी है, जैसे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जो कि डिफाइंड हो कंपनी एक्ट 2016 के तहत, उसमें कंपनी का डिफिनीशन दिया हुआ। पार्टनरशिप फिर्म हो, पार्टनरशिप मीन्स होता है दो आदमी मिलकर कोई कंपनी चला रहा, उसको पार्टनरशिप फिर्म बोलते हैं। और वह रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स कुछ ऐसे पार्टनरशिप कंपनियां होती है जिससे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वह भी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की तहत वह बना हो इन इंडिया में, दैट इज कॉल्ड द स्टार्टअप। एंड ऑल्सो सम कंडीशन ऑल्सो, जैसे टर्नओवर उसकी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्टार्टअप में नहीं कंसिडर होगा। तो याद रखेंगे स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप होता है कि 10 ईयर तक स्टार्टअप होता है, उस कंपनी एंटिटी हो या तो प्राइवेट हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, और उसकी टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात कि द स्टार्टअप वर्किंग टुवर्ड्स द इनोवेशन, नई चीज़ें इनोवेट करना, नई चीज़ें, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो स्केलेबल बिजनेस मॉडल मीन्स ऐसा बिजनेस मॉडल जो स्केल पे हो, जो अभी प्रेजेंट में हो, स्केलेबल हो, बढ़ने वाली हो, दैट इज द हाई। दूसरी बात कि हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज ही एक लिंक्डइन का एक स्टार्टअप रिलीज हुआ है, आप पेपर पढ़े होंगे तो समझिए, स्टार्टअप रैंकिंग, जिसमें अनअकैडमी को फर्स्ट रैंक दिया गया है, अनअकैडमी को फर्स्ट रैंक, और द ग्रेड अप, ये सभी को रैंकिंग दिया गया, जिसमें अनअकैडमी को फर्स्ट, जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। सो द हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। और दूसरी बात कि वह कंपनी को नहीं माना जाएगा स्टार्टअप, जो मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, वह 2 भाग में टूट गया, अब आज टूटा तो आज से दूसरी रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, तो अब वह क्लेम करेगी अब मुझे भी स्टार्टअप कंसीडर किया जाए, आई ऑल्सो द स्टार्टअप बिकॉज आई रजिस्टर्ड फ्रॉम टुडे, तो अप टू 10 ईयर्स द कंसीडर टू बी द स्टार्टअप कंपनी, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टार्टअप के डिफिनेशन में दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट एंटिटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू द स्टार्टअप। ये क्लॉज है, ए ट्रिगरी पॉइंट है, ट्रिगर्ड है आपके एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी चीज है कि वैसे एंटिटी जो कि फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सो उसको भी नहीं किया जाएगा। और एंटिटी शैल सीज टू बी स्टार्टअप एंड कंप्लीशन टू 10 ईयर। सीज टू बी मतलब उसको स्टार्टअप की टैग खत्म कर दिया जाएगा 10 साल के बाद, ठीक है। फॉर्म द डू इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन और टर्नओवर एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड 100 ईयर। 2 चीजें हैं, उसकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए तो स्टार्टअप नहीं रहेगी। दूसरी बात कि वह 10 ईयर्स अगर कंप्लीट करता है तो वह स्टार्टअप अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यह डिफिनीशन है स्टार्टअप का, जो कि अभी पूरे वीडियो में मैंने ये सीखा कि जीएसआरई रिपोर्ट है तो जीनोम इंडिया जीनोम रिलीज करती है। दूसरी बात है हमने सीखा
कि यह स्टार्टअप जो है क्या होता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है। क्लियर? सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जामिनेशन में अबाउट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ यू लाइक वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो share it, subscribe it. Okay, thank you. I am Anil Kumar Tiwari and have a good day.